Good morning. We are going to solve RMS previous year question paper of 2017 class 6 portion general knowledge. चलिए. So first question is for Anshuman. Anshuman, read this question, beta. Plants that grow in saline water are called option A Halophytes, hydrophytes, mesophytes, thallophytes. चलिए अमन, आप रीडिंग करिए. Okay, ma'am. Plants that grow in saline water are called option A halophytes, option B hydrophytes, option C mesophytes, option D thallophytes. Ma'am, correct answer is option A halophytes. Okay. So ये जो हमारे plants grow करते हैं, read this slide also, Amandeep. Okay. Plants that grow in saline water are called halophytes. Example of halophyte are mangrove swamps, marshes and sea salt. ठीक है, ये कुछ examples है आपके. These are some examples. These are some examples of halophytes. चलिए, next question is for सुशांत सिंह. काफी दिनों बाद बच्चा आप आए हैं. Then अंकुर से बात करते हैं. The Salaj project is सलाल project. Chenab, Jilgam, Ravi, Sutleज. Ma'am, right answer is Chenab. Chenab. चलिए, so ये जो हमारा सलाल प्रोजेक्ट है कहाँ पे है? This is on river Chenab. हाइड्रोपावर पोटेंशियल है of river Chenab. चलिए, next question is for चिराग. काफी लेट ज्वाइन किया बेटा आज अपनी क्लास. Philology is the study of bone, study of muscles, study of आर्किटेक्चर. architecture. Option number D, science of language. मैम ऑप्शन नंबर डी. कौन सा तरीका है ये रीडिंग करने का? ऑप्शन है आपने रीड ही नहीं करा, बाकी ऑप्शन आप इतना स्लोली रीड कर रहे हो. चलिए साक्षी, यू रीड दिस स्लाइड. गर्ल्स इतनी अच्छी रीडिंग करती है, आप लोग पता नहीं कैसे रीडिंग करते हो. क्वेश्चन नंबर 53. फिलोलॉजी. Philology is the dash. A, study of bones. B, study of muscles. C, study of architecture. D, science of language. Ma'am, answer is science of language. यस, डी. फिलोलॉजी क्या होता है बच्चा? बेसिकली साइंस ऑफ लैंग्वेज होता है. चलिए यास्मीन, यू रीड दिस स्लाइड. क्या होता है इसमें? Yes, ma'am. Philology is the science of languages. Philology traditionally the study of the history of language, including the historical study of library text. लिटरेरी टेक्स्ट. ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है? हम लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं इन हिस्टोरिकल लिटरेरी टेक्स्ट. किसके रिगार्डिंग हम लोग इसको स्टडी करते हैं? हिस्टोरिकल लिटरेरी टेक्स्ट के रिगार्डिंग इसको हम स्टडी करते हैं. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी. गार्गी, यू रीड दिस स्लाइड. Yes, ma'am. मैम वो वाली स्लाइड विजिबल नहीं है. आई हैव चेंज्ड. देखो, क्वेश्चन नंबर 54. When is World Humanitarian Day celebrated? A option 19 अगस्त, B option 11 मई, C option 1 जुलाई, D option 11 जुलाई. हाँ जी, क्या है? मैम ए ऑप्शन मैम ए ऑप्शन 19 अगस्त. चलिए अब इसको रीड करिए. क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन वर्कर डे? Humanitarian Worker Day. Humanitarian Day is commemorated every day on 19 August to pay tribute to humanitarian workers killed and injuries in the course of their work, and to honor all aid and health workers who continue despite and the odds to provide life-saving support and protection to people most in need. ठीक है, भी ह्यूमैनिटेरियन डे से क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? उन लोगों के लिए जो हेल्थ वर्कर्स है, जो कि एड वर्कर्स है, जो कि ऑड सिचुएशंस में भी अपनी लाइफ को जोखिम में डाल करके जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं. तो ये ह्यूमैनिटेरियन डे उन वर्कर्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्वरित. स्वरित, बच्चा आप रीड दिस स्लाइड. Who became the first Indian basketball player to play in
National Basketball Association. Read loudly. You're not audible, beta. चलिए अर्पिता, you read the slide. Yes, ma'am. Question number 55. Who became the first Indian basketball player to play in National Basket Association? Option A, Satnam Singh. Option B, Balbir Chauhan. Option C, Balbir Singh. Option D, Ramesh Rathod. Ma'am, option A, Satnam Singh. Rathod. Okay, and that is Balbir. Balbir Chauhan. So what is the right answer? Yes, Arpita. Ma'am, option A, Satnam Singh. Now read the slide. Satnam Singh. Bhamara. Yes, ma'am. Satnam Singh Bhamara is an Indian professional wrestler and former basketball player. He is currently signed to All Elite Wrestling. He became the first Indian and Sikh player to be drafted into the National Basketball Association. ठीक है, इनका नाम बहुत बार, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. तो 2 to 3 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर टू प्ले इन NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में खेलने वाले ये फर्स्ट प्लेयर थे. हिज नेम इज सतनाम सिंह बमारा. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, किसका टर्न नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड. जिन्होंने एक बार भी रीडिंग नहीं करी है, प्लीज रेज योर हैंड्स. साक्षी, आपने अभी तो बच्चे रीडिंग करी थी. अंशुमान से रीडिंग करवाते हैं. ऑल्सो अंशुमान इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे. चलो अंशुमान से नेक्स्ट रीड करवाते हैं. अमन से पहले रीड करवा देते हैं. चलो अमन, आप रीड करो और देन इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करोगे. The international date line runs through which of the following two oceans? Option A, Pacific and Indian Ocean. Option B, Indian and the Atlantic. Option C, Pacific and Arctic. Option D, Atlantic and Pacific. Option D, Atlantic and Pacific Ocean. Are you sure about this? Yes, ma'am. No. बिटवीन नहीं कह रहा, थ्रू कह रहा है. ये नहीं कह रहा, बिटवीन नहीं कह रहा, ये थ्रू कह रहा है. क्वेश्चन देखो. यस अंकुर. Ma'am, Pacific and Arctic Ocean. यस, पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन में से ये जो आपकी देखिए, ये ना इंटरनेशनल डेट लाइन पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन में से रन करती है. चलिए, नाउ हु इज गोइंग टू रीड दिस? यास्मीन से रीडिंग करवाते हैं स्लाइड को. चलिए यास्मीन बच्चा, रीड दिस स्लाइड. इसमें क्या हो जाती है? डे चेंज हो जाता है. इंटरनेशनल डेट लाइन के आगे आने वाले दिन एक दूसरा दिन होता है और देन उसके आगे एक अपकमिंग डे होता है. कंटिन्यू यास्मीन. Yes, ma'am. The international date line passes through Pacific and Arctic oceans. The international date line is an internationally accepted demarcation on the surface of Earth running. Demarcation. Okay, ma'am. Demarcation on the surface of Earth running between the North Pole and South Pole and serving as the boundary between one calendar day and the next. ठीक है, डे चेंज हो जाता है इसमें. देख लीजिएगा इसको और अच्छे से. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक और स्लाइड ऐड कर दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. चलिए, ना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो रहा है. चलिए अंशुमान, आप रीड करेंगे इसको बच्चा बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, विदाउट मिस्टेक. कंटिन्यू. Which among the following temples of India is known as Black पगोड़ा. Pagoda? यस. Sun Temple, कोणार्क. Konark. Ma'am, what is this? बृहदेश्वर. Videshwar Temple, Tanjore. तंजोर नहीं होता बच्चा, तंजोर. हाँ जी, ब्रेक कर दो वर्ड को. सोमनाथ Temple, Gujarat. ये क्या लिखा हुआ स्टार्टिंग की? ये वर्ड क्या है? रीड दिस. Meenakshi Temple, मदुराई. बच्चा आप रीडिंग नहीं कर रहे हो. बीच में जब आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दी थी, अपने घर पे भी आप रीडिंग कर रहे थे, तो आपकी रीडिंग में काफी इंप्रूवमेंट था अंशुमान. अब नहीं है इतनी इंप्रूवमेंट. फोकस ऑन द रीडिंग. यस, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Ma'am, option A, Sun Temple. यस, सन टेम्पल कोणार्क, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? वेयर इज दिस लोकेटेड? अर्पिता, कहाँ पे है ये सन टेम्पल? यास्मीन. Ma'am, Odisha. उड़ीसा. Ma'am, Bhubaneswar. यस, उड़ीसा भुवनेश्वर, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो चलिए रीड दिस स्लाइड अर्पिता. Sun Temple, Konark. Sun Temple is also known as Black Pagoda. It is located 365 kilometers from Bhubaneswar. The temple was built on the Mount
mouths of the river Chandrabhaga. But later the waterline receded. ठीक है, Ma'am, इसके I have पीछे भी, also one. हाँ जी बोलिए, which one is? मैम जो कोणार्क टेम्पल है ना, उसमें ना सिक्स हॉर्सेस है, वो चैरियट के मतलब चैरियट के डिजाइन से किया हुआ है इसको, मैंने हाँ, देखा हुआ है क्योंकि पहले। हाँ, क्योंकि जो सूर्य देवता होता है ना, जो लॉर्ड सन है ना, वो उनका चैरियट ही होता है, देखा है आपने? सो दिस इज द रीजन Yes, कि तो कुछ मैं कैसे, ऑल्सो इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है? ट्राई टू फाइंड आउट मैम दैट स्टोरी, फाइंड आउट दैट स्टोरी, क्या स्टोरी है, क्यों इसका नेम सन टेम्पल है, क्या उस रिवर से रिलेटेड क्या स्टोरी है, थोड़ा सा स्टडी करिएगा, आपको पता चलेगा। तो थोड़ी सी अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाइए, ये नहीं कि बस क्लास में करवा दिया मैम ने, बस मैम भी 40 मिनट से क्लास में जितना करवा सकते उतना करवाएंगी, कुछ एक्स्ट्रा आप भी रीड करने की हैबिट डालिए ताकि आपकी हैबिट बने रीडिंग की। जिसको एक बार रीडिंग की हैबिट लग गई ना, फिर उसको कुछ इंटरनेट गेम्स कुछ नहीं दिखेगा, उसको लगेगा बस मैं और रीडिंग करूँ, ठीक है? तो थोड़ी सी अपनी हैबिट रीडिंग की एटलीस्ट डेवलप करिए। चलिए अंकु, यू आर गोइंग टू रीड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। Which movie won the 89th Oscar Award? ऑस्कर बेटा, ऑस्कर, ऑस्कर। Oscar Award in 2017 for the Best Movie category. Option A Moonlight, Option B Arrival, Option C Lion, Option D La La Land. Ma'am, right answer is Moonlight. मूनलाइट, ठीक है। बाय मिस्टेक ला ला लैंड अनाउंस हो गया था इस ऑस्कर अवार्ड में, बाय मिस्टेक ला ला लैंड अनाउंस हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर कैटेगरी मूनलाइट को ही, मतलब मूनलाइट को ही मेन कैटेगरी में अवार्ड दिया था। सो बेस्ट जो मूवी है उसकी कैटेगरी के लिए कौन है अवार्डी? सो दैट इज मूनलाइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन स्वरित, थोड़ा सा लाउडली, देन चिराग से बात करते हैं। देखिए, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चा, नॉट ऑडिबल स्वरित, rejoin the class, rejoin the class बेटा, ओके? चलिए चिराग, आप रीड करेंगे। Which city is called as the City of Golden Gate? Rome, Oxford, New York, ऑक्सफोर्ड, New York, San Francisco. सिस्को, सैन फ्रांसिस्को। Ma'am, option number D, San Francisco. चलिए रीड दिस स्लाइड ऑल्सो। Golden Gate, San Francisco, कैलिफोर्निया, California. The name came from the fact that the Golden Gate स्ट्रेट, Strait, named by John Fremont, is the एंट्रेंस, entrance into San Francisco Bay from the Pacific Ocean. क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर गार्गी, काफी अच्छी लग रही है गार्गी रीडिंग करती हुई। चलो गार्गी, रीड दिस स्लाइड बेटा, देन साक्षी से बात करते हैं। Question number 16. Who among the following is the exponent of musical instrument Mohan Veena? A option Zuman Mehta. जुबैन मेहता, B option Aluddin Khan. C अलाउद्दीन, option Imran Khan. D option Pandit Vishwa Mohan Bhatt. मैम डी ऑप्शन पंडित विश्व मोहन भाट। अब देखो, हमने जो इंडियन म्यूजिक करा था उसमें हमने एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया था। क्या क्वेश्चन था वो? एनीवन? साक्षी, व्हाट वाज दैट क्वेश्चन इन इंडियन म्यूजिक व्हिच वी हैव कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक? किसके रिगार्डिंग था? अमनदीप, अंकुर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था फ्रॉम इंडियन म्यूजिक? हाँ जी, संतूर प्लेयर, संतूर प्लेयर कौन थे वो? सॉरी है क्या? किसी को ध्यान नहीं है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने इतनी बार पूरे टॉपिक में से मैंने आपको एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन बोला था कि बच्चों यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे काम चलेगा? 9 जन का एग्जाम है, अभी आपकी ये हाल है, रिवीजन तो मतलब हो ही नहीं रहा है, नोट्स बना करके बंद करके रखने का कोई मतलब नहीं बेटा अगर आप उसको रीडिंग नहीं कर रहे हो। यस यास्मीन। मैम पंडित शिव कुमार। यस पंडित शिव कुमार, वो क्या प्ले करते हैं? संतूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रहा है तो इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में नोट डाउन कर लीजिए राइट नाउ। मोहन वीणा एंड कौन प्ले कर रहे हैं इसको? पंडित विश्व मोहन भट्ट। उस कैटेगरी में एक ये क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर दीजिए। अब टाइम है कि जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टिप्स भी लर्न होने चाहिए, आप अभी भी सोच रहे हो। तो मोहन वीणा कौन प्ले कर रहे हैं? पंडित विश्व मोहन भट्ट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता, सॉरी साक्षी को बोला था मैंने। चलिए साक्षी, आप रीड करेंगे।
देन अर्पिता से बात करते हैं। Question number 61. Which Indian cricketer is the highest wicket taker in Test matches? Options A. R. Ashwin, B. Kapil Dev, C. Anil Kumble, D. Bishan Singh Bedi. Ma'am, option number C. Anil Kumble. ओके ठीक है, देखो 2017 का ये क्वेश्चन था, सो उस अकॉर्डिंग फाइन अनिल कुंबले इज द राइट आंसर उस टाइम के अकॉर्डिंग। बट अब अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो यू हैव टू गो फॉर मुथैया मुरलीधरन। अगर सेम क्वेश्चन आपका 2021 में रिपीट होता है, विच इंडियन क्रिकेटर इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट मैचेस, तो यू हैव टू गो फॉर मुथैया मुरलीधरन। इस बार आप अनिल कुंबले टिक नहीं करेंगे, बिकॉज 4 साल का गैप आ चुका है और चीजें हमारे जीके के अंदर, करंट जीके के अंदर चेंज होती रहती है। सो मुथैया मुरलीधरन इज द राइट आंसर फॉर नाउ। आगे और भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्पिता, प्लीज रीड दिस स्लाइड। Question number 62. Which national होता है ना मदर? सॉरी, यहाँ पर एल एडेड नहीं है। चलिए, Which national highway connect New Delhi to Jaipur to Ahmedabad to Mumbai? Option A NH4, option B NH7, option C NH8, option D NH22. Now option D NH22. NH22? Yes ma'am. No. Yes, Sakshi, Gargi, Yasmin. Ma'am, NH8. Ma'am, NH8. Ma'am, C option. NH8. हाँ जी, Yasmin, read this slide. Yes, ma'am. National Highway 8. National Highway 8 NH8 is a 4-lane, 6-lane in most parts of Gujarat and between Delhi to Jaipur, National Highway in India. ठीक है, so right answer for this question will be National Highway 8. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अमनदीप। देन अंकुर से बात करते हैं। Yes, What ma'am. happened, Aman? In which city Chaudhry Charan Singh International Airport is situated? Option A Varanasi, option B Kanpur, option C Allahabad, option D Lucknow. Ma'am, option A Varanasi. Okay. और anyone else? अंकुर, अंशुमान? Ma'am, Shira? Lucknow. Ma'am, Lucknow. लखनऊ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? दिस इज इन लखनऊ एंड द नेम ऑफ दैट एयरपोर्ट इज चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अंकुर। अंकुर प्लीज रीड दिस स्लाइड बेटा। Which port of the India is the tidal port? टाइटल पोर्ट, टाइटल बच्चा, टाइटल पोर्ट। Kalhadi, Kandla, Kochi, हल्दिया, Pradip. काल्हाड़ी कहाँ पे है? दैट इज हल्दिया। Haldia, Kandla, Kochi, Pradeep. Pradeep. Ma'am, right answer is Kandla. कांडला, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। कांडला तो आपका हो गया टाइडल पोर्ट एंड लार्जेस्ट पोर्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो दैट इज मुंबई, ठीक है। लार्जेस्ट पोर्ट आपको कौन सा है? मुंबई। एंड टाइडल पोर्ट तो वो कौन सा है? दैट इज कांडला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, इनका टर्न नहीं आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड। जिन बच्चों का टर्न नहीं आ रहा है, जो सोच रहे हैं कि हाँ मैम हमारा टर्न नहीं आ रहा है, तो यास्मीन आप रीडिंग करेंगे। Yes, ma'am. Which country will host the FIFA World Cup in 2022? A option Qatar, B option New Zealand, C option Canada, D option England. Ma'am, answer A Qatar. कतर, ठीक है। देखो अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लीजिए। 2022 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, कहाँ पे होगा? कतर में होगा। बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपसे पूछा जाएगा 2020, अभी 2021 के एग्जाम में भी, एंड देन आगे फिर ये चेंज हो जाएगा। तो फॉर नाउ बिकॉज आपका भी एग्जाम आने वाला है, हो सकता है वो ये क्वेश्चन आपको दे दे फ्रॉम करंट अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गार्गी। चलिए गार्गी रीड दिस स्लाइड। Question number 66. Who is the runners-up of रनर्स अप Wimbledon Championship 2017 in men's single? A option Andia Murray, B option Novak Djokovic, चलो Djokovic बस। C option Rafael Nadal, D option Marin Cilic. हाँ जी, And ma'am, D option Marin Cilic. ठीक है। देखो अब इसमें रनर अप वो थे मर्लिन सिलिक
और चैंपियन कौन थे? रॉजर फेडरर। चैंपियन इसमें कौन रहे थे? विंबलडन चैंपियनशिप में जीते कौन थे? रॉजर फेडरर जीते थे, चैंपियन वो थे। एंड रनर अप कौन थे? दैट वाज मर्लिन सिलिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, किससे रीडिंग करवाए? अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट से रेज योर हैंड, जो इंटरेस्टेड है रीडिंग में, रेज योर हैंड्स। चलिए जी, अमनदीप आप रीडिंग करें, अनम्यूट योरसेल्फ। What is the name of the process of direct change from solid to vapor? Option A, vaporization. Option B, sublimation. Option C, condensation. Option D, none of above. Option B, sublimation. ओके, सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साक्षी, यू आर गोइंग टू रीड दिस राइट। What question number 68? What is the name of atmospheric layer closest to Earth? Options A, stratosphere, B, stratosphere, C, troposphere, D, atmosphere. Ma'am, answer is troposphere. ठीक है, ये देखो अर्थ के सबसे ज्यादा पास में कौन सी लेयर है? दैट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, काफी टाइम ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। तो अगेन आई विल मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्रोपोस्फेयर इज द क्लोजेस्ट लेयर टू अर्थ सरफेस। ठीक है, बाकी और भी देख लीजिएगा, लेयर्स आपका एज इट इज एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साक्षी। साक्षी रीडिंग कर लिया आई थिंक, यास्मीन देन अंकुर। Yes, ma'am. Which of the following mountain range is situated between Narmada and Tapti rivers? A option Vindhya range, B option Aravali range, C option Satpura range, D option none of these. Ma'am, answer is C, Satpura range. Yes, Satpura range जो है आपके is the right answer for this question. चलिए, next question is for Ankur. Optical fiber are useful in the field of sports, transports, telecommunication, agriculture. Ma'am, right answer is sports. Sports? No, sports is not the right answer for this question. Anyone else? Ankur, आपके वहां से कुछ disturbance हो रहा है बेटा? Yes, Gargi. Yes, Aman. Yes, Sakshi. Ma'am, C option, telecommunications. टेक्लो कम्युनिकेशन। ओके, किसी और को भी टेक्लो कम्युनिकेशन पता है? और इस टेलीकम्युनिकेशन, Telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन। ओके गार्गी, दैट इज नॉट टेक्लो कम्युनिकेशन, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स होता है, बेसिकली किस में यूज होता है? टेलीकम्युनिकेशन में। फर्स्ट कंपनी इसको ट्रांसमिट करती है इनटू टेलीफोन सिग्नल्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन, केबल टेलीविजन सिग्नल्स, तो इसमें ये चीज यूज होती है। सो ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट, सॉरी, टेलीकम्युनिकेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यास्मीन, यू आर गोइंग टू रीड दिस स्लाइड बच्चा। Yes, ma'am. BCG vaccine is used for which disease? A option typhoid, B option tuberculosis, C option polio, D option none of these. Ma'am, answer is tuberculosis. Ma'am, B ट्यूबरक्लोसिस। option. ठीक है, बीसीजी वैक्सीन जो होती है बच्चों में यूज होती है टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन क्या है? यूज की जाती है। तो बीसीजी वैक्सीन कहाँ पे हो रही है? ट्यूबरक्लोसिस में हो रही है। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर अंशुमान। चलिए अंशुमान, रीड दिस राइट। What is the lifespan of RBC? Option A 120, option B 25 days, option C 50 days, option D 100 days. Ma'am, option A 120 days. ओके, वैसे एक्चुअल जो टाइम जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 115 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन, बट अब यहाँ पे 115 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू गो फॉर 120। ठीक है, अगर अभी अपकमिंग आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन आपको 115 देते हैं तो यू हैव टू गो फॉर 115। ठीक है, और इनकेस अगर 115 नहीं है तो 115 से आगे का जो भी फिगर होता है नेक्स्ट आगे, अब जैसे इस स्लाइड में 115 के नेक्स्ट आगे वाला कौन सा फिगर है? ये सिर्फ और सिर्फ 120 डेज है। So you have to choose this option. वैसे correct answer for this question is 115 days. चलिए जी, next question is for again Gargi. चलिए read the slide. Question number 73. Who is the appointed as the chairperson of Central Board of Film Certification? A option Parsoon Joshi, B option Parsoon Joshi, B option Rakesh Sharma, C option Suresh Prabhu, D option Prakash Javadekar. What is the right answer for this question, Gargi? And A
ऑप्शन प्रसून जोशी। यस, प्रसून जोशी, अभी भी प्रसून जोशी ही है। सो इनकेस अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इस बार भी आपको प्रसून जोशी ही टिक करना है। सो प्रसून जोशी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, अब देखो एक ये क्वेश्चन आया था, चलो इसको रीड कर लो। यास्मीन, रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. Which country is declared as the polio-free by the World Health Organization? A option Somalia, B option Cameroon, C option Gabon, D option Ethiopia. Ma'am, answer C, Gabon. अब एक्चुअली 2021 तक तो ये सारी ही कंट्री पोलियो फ्री और मतलब डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। 2017 तक हो सकता था ये, बट अब एट प्रेजेंट ये सारी ही कंट्री 2021 तक पोलियो फ्री, हमारे इंडिया भी पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अब फिलहाल कोई जगह नहीं है, तो ये क्वेश्चन अभी चलो हमने डिस्कस कर लिया, बट देखो मैंने स्लाइड भी यहाँ पे ब्लैंक की रखी है, बिकॉज अब सारी जितनी भी कंट्रीज इसमें मेंशन है सारे ही ऑप्शन पोलियो फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं। चलो बच्चा, लास्ट क्वेश्चन, इससे रीडिंग करवाएं, साक्षी से रीडिंग करवा देते हैं। चलिए साक्षी, रीड द स्लाइड बेटा। Question number 75. Who directed the video on Indian national anthem in sign language? Option A. A.R. रहमान, Rahmani. C. Pritam. D. प्रीतम, Karan. D. Karan Johar. Ma'am, answer is Govind Nihalini. गोविंद नेलानी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको ये लिंक दिया है, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो उन्होंने साइन लैंग्वेज में कैसे वीडियो डायरेक्ट किया है वो आपको पता लग जाएगा। वैसे हमने क्लास में मैंने ये वीडियो प्ले किया था, अगर याद हो किसी को, तो साइन लैंग्वेज में हमारा नेशनल एंथम इसमें प्ले हो रहा है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग देखिएगा, मैंने इसमें आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है। अमिताभ बच्चन जी भी है इसमें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा आफ्टर द क्लास, आपको टाइम जब भी मिलता है। ओके क्लास, सो अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, आज हम यहीं तक करेंगे। जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट ओनली, मैं अटेंडेंस ले लूं, वैसे टाइम हो चुका है, सो आज हम यहीं तक करेंगे। यस गार्गी, यू वांट टू से समथिंग? मैम 2014 वाले कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं? 2014 वाले? यस मैम। मैम डेट ऑफ बर्थ वाले। डेट ऑफ बर्थ वाले, हाँ मैं समझ गई। देखो बच्चा, आपके स्कूल में ना एक ऐप बना हुआ है, वहां पे आप अपनी डेट डाल करके, सेक्स मेल या फीमेल जो भी है डाल करके आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए क्वालिफाइड करते हो, ठीक है। एक बार आज मैं मैम से बात कर लूंगी तो वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वो जैसे ही वो पेज ओपन होगा तो आप उसमें अपनी एज डाल करके और अपना सेक्स डाल करके, वेदर यू आर अ बॉय और गर्ल, आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आज मैं मैम से बात करके आई विल ट्राई कि आप सबको ही वो पेज प्रोवाइड हो जाए, कैसे उसको करना, उससे रिगार्डिंग एक वीडियो आप सबको प्रोवाइड हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कैसे, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड हो। आपके स्कूल की जो ऐप बनी हुई है वहां पे बहुत अच्छे से ये चीज दी हुई है। यस साक्षी? मैम RMS 2018 का मैम एक क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।